आज हम लोग 11 जुलाई का शॉर्ट न्यूज़ देखेंगे जो कि नैनो मैगजीन और PIB से लिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो बोल रहा है कि यहाँ पर मेघालय कैपिटल शिलोंग में वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है क्योंकि वहाँ पर सब बहुत सारा ट्रीज को रोड को चौड़ा करने या रोड बनाने के लिए काट दिया गया है नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, जो कि यहाँ पर शिलोंग में जो बना रहा है यही है। फिर यहाँ पर एक चीज़ दोआकी टाउन ऑफ वेस्टर्न जंतिका हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मेघालय जो कि स्ट्रेट पॉइंट बॉर्डर बांग्लादेश से, ये चीज़ याद रखना जरूरी है। मेघालय दो ही एक इंटरनेशनल बॉर्डर टच करता है मेघालय में और एक तुम्हारा इंटरनेशनल बॉर्डर बांग्लादेश है और एक ही स्टेट बॉर्डर टच करता है जो कि असम में। देखना याद रखना, वेस्ट बंगाल नहीं टच करता है। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट आर्टिकल्स देखते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट न्यूज़ है अबाउट इंडियन आर्मी टू इशूज टेंडर्स और रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन फॉर procurements of 1,750 furnished infantry combat vehicles to replace the Russian origin infantry vehicles in service. This is the Army third attempt to procurements of new infantry vehicles. According to the RFI, that is request for information, so the FICV would be employed for a cross-country operation, including ambitious operations in a plain and desert trains across the western border and high altitudes up to the 5,000 meters. ठीक है, ये है न्यूज़। ठीक है, the next short news about the श्री वराह लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ डेडिकेटेड टू विष्णु है। तो यह नाम ही में वराह लक्ष्मी नारायण टेम्पल, तो विष्णु का ही है नारायण। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट न्यूज़ है अबाउट द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिलीज conclusive documents on regulation of microfinance. It has been released for harmonizing the regulatory frameworks and various regulated leaders in the microfinance space, taking into consideration the constantly evolving financial sectors. It proposed to review the regulatory framework of non-banking finance company, microfinance institutions. There is a case for having the framework which is uniformly applicable to all regulated leaders in the microfinance space, including scheduled commercial bank, small financial bank, NBFC, investment and credit company, rather than a prescribed their guidelines for NBFC and MFI alone. The next short news is about the food and public distribution e-launch. Fed fortified rice brand oil जो कि राइस का भूसा से बनता है। ठीक है, ये ठीक है। और WHO it is acted as a booster and reduce the risk of the cancer due to the high amount of the vitamin E. This oil is recommended by the WHO as one of the best substitute of edible oil. ठीक है, fortified rice brand oil. Next short news is about the just over 6 months after it has launched
the international portal for issuing the certificate on the identity of the transgender persons has issued 1,557 certificate according to the Social Justice and Empowerment Ministry data. ठीक है. In November 2020, Union Ministry of Social Justice and Empowerment launched a national portal for transgender persons. It has been developed within the 2 months of the notifications of the transgender persons rule 2020 on 29 September 2020. This portals would help the transgender persons in applying for a certificates and identity card digitally from anywhere in the country. फिर नेक्स्ट है इंटरनेशनल न्यूज़ में देखो सी ब्रिज एक तरह का युद्ध अभ्यास है जो कि ब्लैक सी में हुआ है बिटवीन द यूक्रेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स. ठीक है. एक्सरसाइज ऑफ सी ब्रिज हेल्ड सिंस 1997 involving NATO states and allies in the Black Sea regions. It takes 21 time since 1997. ठीक है. फिर उसके बाद मेंटेन स्टेबिलिटी एंड पीस, इसका काम ही है मेंटेन करना सी ब्रिज. ठीक है. अब ब्लैक सी को कौन कौन कंट्रीज सराउंड करता है? तो रसिया करता है, यूक्रेन करता है, जॉर्जिया करता है, तुर्की करता है, बल्गेरिया करता है और रोमानिया करता है. बल्गेरिया एंड रोमानिया. ठीक है. ये ठीक है. बल्गेरिया, रोमानिया, तुर्की, यूक्रेन, रसिया, जॉर्जिया. फिर नेक्स्ट नेशनल न्यूज़ के बारे में. नेशनल न्यूज़ में है कि स्मॉल सेविंग स्कीम जो कि गवर्नमेंट में रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम्स फॉर द जुलाई एंड सितंबर क्वार्टर. ठीक है. तो स्मॉल सेविंग रेट जो कि स्लैश बिटवीन 0.5% to 1.4% on different instruments in April 2020, bringing the PPF Public Provident Fund rate 7.1 from 7.9. The small saving schemes जो कि major source of the household saving in India, the depositors get assured interest on their money credited to the national small saving funds. ठीक है. फिर उसके बाद emerge as a key source of financing the government deficit, especially after the COVID-19 pandemic led to the government deficit necessitating higher need of borrowing. A small saving instruments can be classified under the three head. पोस्टल डिपॉजिट जो कि कंप्राइजिंग द सेविंग अकाउंट्स, रिकरिंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट ऑफ वेरियस मैच्योरिटीज एंड मंथली इनकम स्कीम. ठीक है. फिर सेविंग सर्टिफिकेट्स जो कि नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट्स एंड किसान विकास पत्र. ठीक है. ये सब सेविंग सर्टिफिकेट है. पोस्टल डिपॉजिट जो कि कंप्राइजिंग सेविंग अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट एंड वैलिड मैच्योरिटी मंथली इनकम स्कीम्स. एंड सेविंग सर्टिफिकेट कौन सा? नेशनल स्मॉल सेविंग सर्टिफिकेट एंड किसान विकास पत्र जो कि सेविंग सर्टिफिकेट है. तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम कौन कौन सा है? सुकन्या समृद्धि स्कीम से पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, PPF, सीनियर सिटीजन सेविंग्स जो कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम चलाता है. फिर एडवांटेज ऑफ रेट कट क्या है? एडवांटेज है सिंस द सेंट्रल गवर्नमेंट यूज द स्मॉल सेविंग फंड to finance its deficit, the lower rates would
reduce the cost of the deficit financing. A cut in the rate would mean that the government want people to spend and provide impetus to the economic. स्टेट न्यूज में आ जाओ। स्टेट न्यूज में है एक बर्नाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। तो बर्नाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो उसका एक हमारे पास यहाँ पर रहना चाहिए। बर्नाडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो है हमारा कहाँ पर, ठीक है। तो बरंडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो असम में है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद ये चीज़ याद रखना है मेनली, ठीक है ना। फिर असम के बक्सा और उदनगुरी डिस्ट्रिक्ट में ये बॉर्डर विद भूटान के साथ बॉर्डर करता है, वहीं पर लोकेटेड है, ठीक है। भूटान के साथ बॉर्डर करता है, वहीं पर लोकेटेड है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो कि आर्टिकल्स है अबाउट इकोनॉमिक में, तो इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज जो कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अनाउंस स्लू of measurements to provide a relief to diverse sector affected by the second waves of a COVID-19 patient. Aim क्या to prevent the health systems for emergency response, to prepare the health system for emergency response and provide impetus for growth and employment. But it will increase the fiscal deficit by 0.6% as per the reports of the State Bank of India. जो कि इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज जो कि 17 मेजर अमाउंट्स ऑफ 6,28,993 करोड़, ठीक है। मेजरली जो ड्यूमा है एडिशनल क्रेडिट ऑफ 1.1 लाख करोड़ दिया जाएगा और 50,000 करोड़ ऑफ द हेल्थ सेक्टर में दिया जाएगा, 60,000 करोड़ टू अदर सेक्टर इंक्लूडिंग द टूरिज्म and guarantees cover of 50% of the expansion and 75% of the new project for aspirational districts and guarantee over the 75%, ठीक है। जो कि ये सब होने से ग्रोथ ऑफ द एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और स्ट्रेंथन द पब्लिक हेल्थ स्ट्रेंथ होगा और क्रेडिट स्कीम्स सिस्टम टू द माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को क्रेडिट स्कीम मिलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है अबाउट द इंटरनेशनल सिक्योरिटी जो कि integrated guided missile program जो कि it was convinced by the APJ Abdul Kalam to enable the India attain the self-sufficient in the field of missile technology. It was approved by the government of India in 1983 and completed in March 2012 and इसमें 5 मिसाइल था जिसका नाम था पटना, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग एंड आकाश जो कि शॉर्ट रेंज पृथ्वी शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है और अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। अग्नि का बहुत सारे सीरीज है 1 2 3 4 5। फिर त्रिशूल है शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है। त्रिशूल सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। और नाग जो कि एंटी टैंक मिसाइल है और आकाश जो कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू एयर मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है। त्रिशूल शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है और आकाश मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। नाग एंटी टैंक मिसाइल है और पृथ्वी जो है बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल ऑफ डिफरेंट रेंज अग्नि 1 2 3 4 5 है, ठीक है। अब एक अग्नि पी करके आता है, अग्नि प्राइम करके जो कि नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। और सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड एंड बाय द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO फ्रॉम द APJ Abdul Kalam Islands of the coast of the Odisha, Balasore. Agni P is a new generation advanced variant of the Agni class missiles. It is canister मिसाइल है, मतलब एक खोली में रखा रहता है, ठीक है।
जो कि 1000 से 2000 किलोमीटर तक के वो रेंज में मार कर सकता है। ठीक है, ठीक है। अग्नि का रेंज दिया हुआ अग्नि 1 का 700 से 800 का, 2 का 2000 तक का है, 3 का 2500 तक का, 4 का 3500 का है, और 5 का बैलिस्टिक मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कि 5000 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ठीक है, चलिए अब क्विज लगाते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है, द्वाकी अ टाउन और वेस्ट जंतिका हिल डिस्ट्रिक्ट मेघालय में होता है, इज अ ट्रेड पॉइंट ऑफ द बॉर्डर विथ बांग्लादेश के साथ बॉर्डर करता है। ठीक है, द इंडियन आर्मी इज इशूड टेंडर ऑफ RFI, जो कि तुम्हारा प्रोक्योरमेंट ऑफ द 1750 फर्नेस इन्फेंट्री कॉम्पैक्ट व्हीकल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है तुम्हारा कि श्री वरहा लक्ष्मी नारायण टेम्पल डैश इज फ्रॉम कहाँ से, आंध्र प्रदेश का है। राइस ब्रान ऑयल जो है रिकमेंड बाय द WHO एज वन ऑफ द बेस्ट सब्सटीट्यूट ऑफ द एडिबल सॉइल। फिर डैश वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, the landmark decision on by the Supreme Court on declaring the transgender people as a third gender. फिर इसका यूक्रेन एंड द US launch a naval exercise sea bridge in the Black Sea. ठीक है, to show the western cooperation with the Ukraine as its face off with Russia. ब्लैक सी जो कि मार्जिनल सी ऑफ अटलांटिक ओशन है। ठीक है, और इसको इरिस्टी मतलब कि सी भी बोलते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होता है, एक्सोएन सी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू जनरेशन न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि P डैश वाज सक्सेसफुली टेस्टेड फायर्ड। ठीक है, अग्नि P जो कि APJ अब्दुल कलाम से टेस्ट फायर किया गया सक्सेसफुली बाय द डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डैश आइलैंड, अग्नि APJ अब्दुल कलाम, जो कि सक्सेसफुली सरफेस टू सरफेस है। ठीक है, अग्नि प्राइम P फॉर प्राइम। ठीक है, अच्छा यही पूछ रहा था। और रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन RFI बांग्लादेश विष्णु का टेम्पल है जो कि अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, राइस ब्रान ऑयल नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया is a landmark decision of the Supreme Court of India which declared transgender people as a third generation. National Legal Service Authority versus Union of India is a landmark decision for the Supreme Court of India which declared the transgender people as a third generation. ठीक है, अब एक और पिछले दिन का आर्टिकल का देख लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। तो आर्टिकल डैश द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो आर्टिकल 164 बोलता है, 164 आर्टिकल 164 64। ठीक है, 64 चीफ मिनिस्टर बन गया तो चौड़ा होकर घूम जाएगा क्या। 164 जो वो बोलता है कि चीफ मिनिस्टर शैल बी द अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। The Prime Minister Narendra Modi has expressed grief on the death of editor of Sanskrit Daily दास के संपत कुमार संस्कृत डेली का एडिटर है। ठीक है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया हैज इंस्टीट्यूटेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स इन द फील्ड ऑफ कंट्रीब्यूशन टू द यूनिटी एंड इंटीग्रेशन of India in the name of DAS award, Sardar Vallabhbhai Patel award name. ठीक है, China pledged in 2020 to reach the carbon neutral by 2060. China has put into operations the Behattan Dam on the Jinsa River tributaries of the Yangtze River. ठीक है, आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड द ऑफिशियल अटॉर्नी जनरल ऑफ
76 appointed by the President to represent the Government of India in any reference made by the Presidents of the Supreme Court under the Article Dash of the Constitution. Power of the President to consult with the Supreme Court of the Constitution to represent the Government of India in any reference made by the Presidents to the Supreme Court under the Articles 143. ठीक है. Constitution of India Article 10 has provide the office of Advocate General for the states. तो 165 ठीक है. फिर उसके बाद मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स फॉर डैश लॉन्च द इंडियन स्टोरी बुकलेट्स compilations for the Indian initiatives that are shaping the Indian energy transitions. एजुकेशन मिनिस्ट्री होगा और क्या. अब इसका आंसर देख लेते हैं. तो आर्टिकल 164 डील करता है तुम्हारा चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर. फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो कि एक्सप्रेस द ग्रीफ ऑन द डेथ ऑफ द संस्कृत डेली सुधर्मा. अच्छा, संस्कृत डेली का क्या नाम था? सुधर्मा. न्यूज़पेपर का नाम सुधर्मा था. सुधर्मा ये धर्मा. ठीक है. फिर सरदार पटेल नेशनल यूनिटी अवार्ड जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर दिया जाता है. 2060 तक चाइना कार्बन न्यूट्रल होने का प्लेज किया है. यांगसे रिवर पर जो कि जिनसा रिवर का ट्रिब्यूटरी है वहाँ पर बेहतरीन डैम बन रहा है. बेहतरीन डैम बन रहा है. आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल के बारे में बोलता है. आर्टिकल 143 मतलब कि प्रेसिडेंट को कंसल्ट कर सकता है और एडवाइस देने के लिए बोल सकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से. ठीक है. फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 165 हैज़ प्रोवाइड द ऑफिशियल ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल. ठीक है. एडवोकेट जनरल स्टेट में होता है, सेंटर में अटॉर्नी जनरल होता है और सॉलिसिटर जनरल होता है. ठीक है. सॉलिसिटर जनरल का कॉन्स्टिट्यूशन में नाम नहीं दिया हुआ. ठीक है. स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी लॉन्च द इंडियन स्टोरी बुकलेट्स compilations of the Indian initiative that are shaping the Indian energy transition. ठीक है. तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो.